बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रात्रि में बहुत दिन सोया, रात्रि में बहुत दिन सोया, रात्रि में बहुत दिन सोया,
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। Hare Krishna. Vanchakapatarubhasya vipasanu navitya patitanam paveni veyo vaishnaviyo namo namah. So, I didn't want to speak. Actually, I didn't, because these two nice devotees from India came all the way from India, and of course, you would like to hear them because it comes so far. But upon their request, and also the fact that I made a mistake today, whenever I come to a house as a guest, I always have this habit that I've learned from A.C. Bhaktivedanta Swami, that you should always give something. You don't come empty-handed. You have to give something. So, because I was in a hurry and I was living in the east and coming to the west, I'm not too sure how to come here. Anyhow, I managed by Krishna arrangement. I could manage it. But I came without anything. So, I have apologized to Nidhi and the husband. So I'm now obliged to give something, and I will speak a little bit, so that the two devotees here from India can be able to speak something more. So I'm going to continue to where I last time spoke. It's about the Shishastakam, and I think everybody here knows about it, but so I'm just going to read the sloka, verse 1 and verse 2. And specifically, verse 2 I will speak, because I only speaking verse 1 because verse 1 is connected to verse 2, and so on. Verse 2 is connected to verse 3. It's not possible for me to go somewhere in between. So I'm going to do that, if you don't mind. My pronunciation is not so good because of my background. Cheto dapana majanam pavamaha davatni nivarpana Sriya bhairava chandrika vitharanam vithya vadu jivanam anandam buddhivadanam pratipadam punamritam swadanam sabatma snapadam paramjayati Sri Krishna Sankirtanam. Translation as been translated by His Divine Grace Srila Maharaj, Bhakti Rakshaka Srila Maharaj. The holy name of Krishna cleanses the mirror of the heart and extinguishes the fire of misery in the forest of birth and death. As the evening lotus bloom in the moon cooling ray, the heart begins to blossom in the nectar of the name. And at last the soul awakens to its real inner treasure, a life love with Krishna. Again and again, tasting nectar, the soul dives and services in the ever-increasing ocean of ecstatic joy. All phases of the self of which we may conceive are fully satisfied and purified, and at last conquered by the all-auspicious influence of the holy name of Krishna. So here in verse number 1, I will not even go through it, because basically there are seven benefits. What's the reason for chanting the name of Krishna? What's the benefit of it? It's all stated in here, and there are 7 benefits, and it will take me hours just to explain it. I don't want to do that, and I've already done so in previous other talk. So and I actually did not finish about it. So I decided anyhow to go on to the next verse. The last time I met. The next verse goes to the following thing.
Nam Nama Kariba Puja Nija Savar Shakti Tatra Niyamita Smarini Nakalaha Ita Vishitava Kripa Bhagwan Namapi Tudaivam Ivisham Ihajani Naru Raga. O my Lord, your holy name bestow auspiciousness upon all. And you have unlimited names such as Krishna and Govinda by which you reveal yourself. In your many holy name, you have kindly invested all your transcendental potency. And in chanting this name, there is no strict rules concerning time or place. Out of your causeless mercy, you have descended in the form of divine sound. But my great misfortune is that I have no love for your holy name. So there's a lot of Siddhanta instruction here, and it is also not possible for me to go through it. But suffice to say that the holy name is non-different from Krishna himself. So Krishna and holy name is non-different. There's no difference, and it is very auspicious. You know, it is so simple. In that sense that all you need to do is chant the Hare Krishna Maha Mantra. That's all you need to do. Just chant the name of Krishna, glorify Krishna. That is the formula. Nothing else. If you do this sincerely, then this is the formula that takes you to become Krishna conscious, if you like. But then, in the last part of the verse, and I mentioned it earlier before, and last time, it says that, but my great misfortune is that I have no love for your holy name. Despite all that, I have no love for your holy name. My mind is always distracted. I have so many worries, mundane worries that I have, I try to get rid of it. I think I can, but somehow it is still not possible. So I'm speaking on my experience that many devotees during my age, they came into Krishna consciousness because it's such a simple thing. You chant Hare Krishna mantra, Maha Mantra, and that's it. No more. Eat Mahaprasad, of course you need Prasad, and that's how the formula is. And most of the time, at that time when we were young, we thought, well, that's a simple formula. Let me just try it. What do I have to lose? So we can do this, but by the end of the day, if you like, after many, many years, you realize that it's not so simple as you think it is. It's not as simple as you think it is. Because it requires your mind should be totally absorbed in Krishna. And anyone, or at least I cannot commit to the fact that, say that I'm in that stage. If you are truly honest to yourself, even not in public, truly honest to yourself, then you will realize that it is not simple. It is not simple. And devotees have to reach, as we were reading, we were singing the song by Keshav Maharaj, is that? Keshav. Yeah, Sri Vaishnava Das. This is the first time I'm reading it, first time I'm singing it. It's such a beautiful song that it feels so low. They don't feel as if they deserved it to get the mercy. But, it is by the mercy of Gurudev that we are able to think that way. So, I can talk a lot about this, but I'm not going to do that because it's going to take a lot of time. But I want to talk is that
when Nandini sit down and then I will talk a little bit more because it is her house, you know. So we are all, you should feel eventually this way, that I'm so misfortunate that I have no love for Christian name. So what's wrong? What is it? You know, I mean, why is it? Why would somebody who chant the name of Krishna for so many years ended up with this statement? I have been so unfortunate that I cannot love Krishna. So that is actually Mahaprabhu himself wrote this, and so are we expecting not to not know this? If you do not reach that stage, then there may be something wrong is going on. So there's a going saying that if you think you are a devotee, then you are not a devotee. But if you're not a devotee and you think and you continue to pray and you still have perseverance, then the progress is assured. You know. So, but with this kind of mood, you know, I have to skip a lot of things. You know, but this kind of mood, how do you? With this kind of mood, how do you progress from here then on? You know, with this kind of mood, where do you progress? How do you progress? And the progress is by mercy of Guru Dev, that he has given something that is so precious that it would be crazy if you don't follow it, if you like, you know. So that, or I skip that too. But my point now to Nandini and the rest of them is that we can still go on. We can still chant the name of Krishna, and because we want to be happy. Nobody wants to be unhappy. We want to be happy. So we have to continue to chant the name of Krishna, and then Krishna will reveal to you. So, of course, you know, many stages that we go through that, okay, we chant the name of Krishna because, well, you know, I'm Indian, I this background, I want to gain some sukriti, if you like, piousness, so that I can be happy, I can have good children, I should make sure that the children are educated and so on, and getting married, getting your daughter to get married. So many things we want to do. And that is the so-called mundane happiness that we have to go through. But we can't avoid this. It is there, you know. Of course, we want it to be there. And on the spiritual point of view, is that good or not good? Actually, the devotee should be acting neutral. You know, karma will come. You not say that you chant the name of Krishna, all the karmic activities will not come back to you. Because of your past activities, sometimes you have good luck, sometimes you have bad luck, bad karma. That's why sometimes, you know, like what I'm seeing, Preeti's daughter, you know, the hand is got injured, and her hand got injured too. And so, by the way, I have the same problem as you. I'm having this problem right now. So when you get older, the things happens, you know. So there are things in this material world or mundane world that we cannot deny. It is there. It is there, and we are here with this body, trapped in this body. But how do we continue? So it's all right you have to live by with the fact that sometimes good karma comes. You have, because of your bad karma, you have to go through it. If there's good karma, that's well and fine. That's good, you know. But most important thing is that do not forget Krishna. Do not forget to chant the name of Krishna. And what do you get out of that? How else can I explain it to you? You know, I'm reading some bio data of the two devotees here from I think it was sent by Mirabai. So
They are two very intelligent persons, but still they want to dedicate their life in a way that they will please their Gurudev and please Krishna. So that is the joy. It is the joy of doing service for Guru. That is the joy. And that joy is something which you cannot get in one day. This joy is there. So, like, I put it, I said it quite a few times, but I'll say it again. It is a good investment. A good investment is that if you, let's say, in a mundane point of view, if you invest something, say, let's say $10,000, and then in 2 years later, you get $50,000, and then you say, that's a good investment. That's a good investment. I'll do that, So similarly, if you invest on Krishna, your time for Krishna, the return is infinite. And that's what two intelligent person in here is doing that. It's not because of anything else, There is a reward. There's a reward. And that reward, that joy, a reward is there. And so long as you're living in this material world, karma will come, bad karma will come, good karma will come. You just take it as a neutral and just continue to chant the name of Krishna. That's all I want to say. I don't want to take any more time. So let them do what you have to say. What I'd like to do is to have a little small kirtan, short kirtan. Is okay? Okay. And then after that, you can just continue. Yes, I can do, but I don't do madranga. You got to help me. But it's a very simple one. I probably need the kirtan also to make sure that I connect with you. Okay. Hare Krishna. If I may ask, I've never done this. I've done this once before, but I'm going to ask the second time. If you can dim the light a little bit, it's because. Hare Krishna. Yeah, that's good. We say that if you chant the name of Krishna from the heart, then Krishna will come. So let's hope by all your singing, Krishna will come here. And then we do that. There's a saying that, children, they cry, the mother knows, okay, this cry is fake crying. It's not real, But when they are really hungry or very hot and they cry, then yes, my son or daughter is actually crying and they want food, So in that way, we should chant. In that mood, we have to chant. I know we should do that. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Gopi Jana Pallava Jaya Girivardhana Jaya Girivardhana Jaya Girivardhana
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जय राघव माधव जय कृष्ण बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur
Very nice Prabhu. Nam Shestam Anumapi Sachiputramatra Swarupam Rupam Tasya Grajam Ruparim Maturim Goshtavatim Radhakundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tannatosmi Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So first of all, offering my Dandavat Pranams unto my Gurudev Om Vishnupad, Astots of the Shishimad Srila Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj, the same unto Shripad Madhav Priya Prabhu, and to all my Shiksha Gurus, unto Jagaguru Nityalila Prasad Vishnupad, Astots of the Shishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada, and all of his divine associates. My pranams unto Shri Chaitanya Mahaprabhu, and also unto all of his divine associates, unto Shri Radha Madhav, and also unto all of their divine associates, and my pranams to all devotees present. Hare Krishna. So Kesha Prabhu mentioned, what is the nature of this material world? The nature of this material world is Dukhalyam Ashashvat. It is temporary and full of miseries. This is the nature of this material world, and we cannot change the nature of this material world. We see so much suffering that's going on around us, and we can't change this. With the little power that we have, people try and try and try, but this is always there. This is always there, and it will always be there. This is what Bhagavad Gita says. Dukhalyam Ashashvat, temporary and full of miseries. So what can we change? We can change our perspective in this material world. So many people are going throughout their whole life searching for happiness and purpose. But what is the nature of this material world? It is temporary. So all of the happiness that is within this world that we are searching for is only temporary. We are searching for this little bit of happiness here, this little bit of happiness there. But still, it's the same thing again and again and again. So, how do we change our perspective? If we cannot change the nature of this material world, it is actually up to us to change our own perspective on how we view things. See, this material world, it can be either a place of bondage or lessons. We can be bound within this material world and go through all of these different kinds of sufferings. Or we can see these as a lesson, as a teaching to help us, to teach us how we can actually attain the real goal of life. What is the real goal of life? The real goal of life is not to obtain a nice house, nice car, nice job, to get all of these things, so much money. Because all of these things, they do not actually bring happiness. You can ask the richest man in the world, is he happy? See, this is the thing, is that people go throughout their whole life searching for these things. And actually it just brings more money. More money brings more troubles. And more troubles, more troubles. And this is the nature of this material world. But you see these divine personalities, these people who are practicing spiritual life, they are so happy. They are so happy because they are tapping. They are getting connected to that world which is infinite. This world is temporary, but that world is infinite. Like, for example, in this material world, what's your name, little Prabhu? What's his name? Shivan. Shivan, how many rasgullas can you eat? Rasgullas. How many? If I give you 5, can you eat 5? 5? Wow. If I give you 10, could you eat 10? I can. You can eat 10.
Can you eat 10? Can anyone eat 10 rasgullas? Difficult, huh? So if I give you 10 rasgullas, I may be able to eat, but oh my stomach. But if I give you 15, no way can I eat this. So you see, on the first rasgulla, we think, oh wow, this rasgulla, it's so nice. Oh, my favorite rasgulla. But on the 10th, see, we think, oh, I never want to see rasgullas ever again. That's right. Because you got too much. Because you've got too much. So this is the thing about this material world, is that there's a saturation point. There's a saturation point. But with that world, with the spiritual world, it is infinite. It is always new. It is ever growing. And we can tap into that world. But it starts with what? It starts with a question. What am I doing here? What is my purpose of being here? Why am I in this community? Why am I having these satsangas? These satsangas are not just a get-together. These satsangas are coming in together to be able to advance together in developing this consciousness. So these questions are very important. So every day there are questions and answers. Oh, what is the time? Where are we going? What am I doing for my job? But do these questions actually satisfy the self? So in Srimad Bhagavatam it says, Munaya sadhu prishtoham bhavadbe lokaranjanam yat krita Krishna samprashno yenatma suprasiddhyati. See, the sages in Namasharanya, they are questioning. They are asking all of these different questions. Oh, Kali Yuga is coming, and I am seeing all of these people are suffering. What is the topmost thing that can benefit? That can benefit these people? And he is saying, oh, questions that are related to Krishna, this can really satisfy the self. Really satisfy the self. So 5,000 years ago, when Krishna, he came here, these questions were being asked. And during this pastime, when the Pandavas, they were in the forest, and they were very, very thirsty. And Yudhisthira Maharaj, he sent out Bhim to go look for some water. And Bhim, he was searching around. And he found this beautiful pond, very beautiful pond. And he was so thirsty, and he started to drink. And he took one handful, and he went like this. But then he heard a noise, and he said, oh, Bhim, do not drink this water. If you drink this water without me giving you this permission, then you will pass out, you will die. And he said, do you know who I am? I have the strength of 10,000 elephants. And he said, you cannot harm me. And what did Bhim do? He drank. And then he fainted. He passed out. And Yudhisthira Maharaj, he thought, oh, my brother, he is taking so long. Oh, Arjun, you go and you find him. So Arjun, he came to the lake and he saw his brother Bhim. And Bhim, he was there on the floor. And Arjun thought, oh, this is very strange. My brother Bhim, he is very, very strong. And he was very thirsty as well. So what did he do? He went to take a drink from the lake. And then he heard a voice. He said, if you take a drink from this lake, you will have the same fate as your brother. And Arjun said, do you know who I am? I'm one of the greatest warriors in the entire world. You cannot harm me. So he took one sip and he fainted. So like this, so much time had passed. And Yudhisthira Maharaj, he thought, oh, my two brothers have not come back, so I will send Nakul and Sahadev. So they went, and they also found their two brothers. And they also took a sip, and the same thing happened to them. Now Yudhisthira Maharaj, he was very, very worried. So he went to search for his 4 other brothers. And he came to the lake, and he saw them. And like this, he was so worried. How on earth did this happen to him? But he was so thirsty, he went to take a drink. And the person said, the Yaksha, he said, oh, you must answer my questions. If you want to live by drinking this water, if you want to have the same fate as your brothers, go ahead and don't answer my questions. But you must answer my questions. And in this way, you can also revive all of your brothers. So like this, the most important questions were being asked 5,000 years ago to Yudhisthira Maharaj. And there's many, many questions. But there's one question I want to focus on. And the Yaksha asked him, what is the safest path? What is the safest path for mankind?
Like we were driving on this road today and there was a big accident. It took us how long? Hour and a half, huh? See, these roads, they are not safe. So what is the safest path? And Yudhisthira, being a very great Vaishnava, what did he say? He said the safest path is the path which is carved out by these great devotees. The path that follows in the wake of these pure devotees, this is the safest path. All other paths around us, they are not safe. Because where are they leading us? We don't know. They are leading us here, they are leading us there, but this is only danger. So the safest path is that path which is carved out by our spiritual teachers. These spiritual teachers, they are not ordinary personalities. They have come as Acharyam Vijaniya, as direct representations of Krishna to this material world. To what? To help us, to guide us, to bring us back to that place. To bring us to that place where there is permanent happiness and bliss. This world is temporary and full of miseries, but that world is full of bliss and happiness and eternal youth and all of these things. And we can get connected to that through these very great devotees. So we have come in this association for a purpose. This is not just a regular thing that we do. This is a practice which is connecting us to that divine realm. That divine realm is so important. That is our actual home. And we are trying to go there. And we are trying to go there. And Guru, he gives us the key. He is giving us this key and he is putting it within our hand. And he's saying, take this key. This is the key for you to go back, for you to go there. So there's one example. For example, if I come to this house and I ask Prabhuji, can I have your password? Because I have a very, very nice phone, iPhone 15 Pro Max or whatever, very fancy phone. And say, oh, I have this phone, but I need to connect to the internet and I do not have the password. Even though this phone, it is very, very fancy. But what do I need? I need this password to be able to connect to the internet and to get all of my messages. So I come to Prabhuji and he enters this password. And what happens? Ding, 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 ding. All of my messages come. All of these messages come. So, like this, without Prabhuji giving me this password, I cannot connect. I cannot connect to that internet realm. So in the same way, we also need this password. We need this password to be able to connect to that realm. And this is the Maha Mantra. This is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, how many G's are in this material world? Like we have 5G, 4G, right? But when we connect to that realm, how many G's are there? We have Radha Ji, Krishna Ji, Mahaprabhu Ji, so many G's, infinite amounts of G's. So like this, we're trying to connect to this realm. And this only comes from this password, this Maha Mantra. Bhakti Yoga Bhagavati Tam Nam Grahanadibi. This Bhakti Yoga, this devotional service, practiced by chanting this Maha Mantra in Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Krishna Nam Ema Prache Samsana Janite Arpon Vastune. These two things only are able to take us out of this wheel of samsara. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Thank you, Guruji. Thank you. हरे कृष्णा। सभी को समझ आया अच्छे से? ठीक है। वंदे हम श्री गुरु श्री उदापद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी एवं शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी एवं सपार्षद शिला प्रभुपाद श्री राधा कृष्ण और एवं यहाँ सभी उपस्थित वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर किस प्रकार का ताप है, दुख है, हमारे को कहाँ जाना है, हमारे को भगवान के धाम में जाना है। उसके लिए प्रोसेस भी हमने सुना, क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन, गुरु धारण करना, उनकी सेवा करना और उनके निर्देश आदेश अनुसार अपने जीवन को यापन करना। किंतु यहां पर एक बड़ा प्रश्न उठता है पहले, जो कि नंदिनी दीदी ने मेरे को कहा कि उस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और बच्चे लोग भी सब सुनेंगे ना? ठीक है। क्या है वो? कि हम इस संसार में आए ही क्यों? प्रोसेस तो हमने डिस्कस सुन भी लिया कुछ और पता भी है, पहले भी सुनते रहते हैं कुछ कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए, उससे ही भगवान प्रसन्न होंगे, वहां उनके धाम में जाएंगे हम। उनके धाम में जाने के बाद फिर हमें इस संसार में पड़ना नहीं पड़ेगा, फिर से वहां यहाँ के दुखों को हमें स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। वहां का जीवन कैसा? पूर्ण रूप से सुखमय। वहां कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, वहां कोई बीमारी नहीं लगती, कोई व्याधि नहीं लगती, कोई दुख नहीं है। जैसे प्रभु जी ने भी बतलाया कि किसी प्रकार का वहां पर क्या नहीं है? स्कैर्सिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि दैट रेल्म इज इनफाइनाइट रेल्म, वहां पर लिमिटेड चीजें नहीं है। अभी मान लीजिए यहां पर आपकी कॉलोनी में 2-3 दिन तक पानी नहीं आता है, तो कितनी असुविधा होगी। और फिर चौथे दिन एक टैंक आता है। अब उस टैंक में अनाउंसमेंट हो रही है कि सब लोग एक एक बाल्टी पानी ले लो इसमें से, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। तो सारे घर में से सब लोग आ रहे हैं एक एक बाल्टी लेके अपने, सब लोग पानी भरेंगे। अब कोई एक माता जी है, वो क्या करती है? 2 बाल्टी ले आती है। अब क्या होगा? हमारे सामने अगर वो 2 बाल्टी भर लेगी पानी, तो क्या होगी? लड़ाई हो जाएगी। आप क्यों 2 बाल्टी भर रहे हैं? यहाँ पानी की कमी है, सब एक एक ही भर रहे हैं, उन्होंने एक एक ही बोला है, हम आपको भरने नहीं देंगे। और अगर वो भर के ले जाती है तो क्या होता है? मन में बड़ी असुविधा होती है कि हमारे को एक ही बाल्टी पानी मिला, कितने मुश्किल से हमारा दिन चलेगा इससे, और ये 2 बाल्टी पानी ले गए। तो क्या हुआ? क्लैशेस हुए, मन में असुविधा हुई। किंतु गुरुवर्ग बतलाते हैं वहीं पर ही अगर एक नदी है, उस नदी में आप भी पानी भरने जा रहे हैं और वो दूसरे माता लोग भी पानी भरने जा रहे हैं। अब वहां पर मेरे पास कितने कैपेसिटी है? 2 बाल्टी लेके जा सकता हूं। लेके गया, भर लिया पानी, और बगल में वही माता जी 4 बाल्टी भर रही है पानी। तो अब उन माता जी से या किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई द्वेष होगा कि अरे ये 4 बाल्टी पानी क्यों भर के जा रही है? मन में यह आएगा नदी सूख जाएगी? नहीं, मन में क्या आएगा? 4, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। वैकुंठ, वैकुंठ का क्या अर्थ है? वैकुंठ बोलते हैं भगवान का धाम। तो वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहां पर कुंठा नहीं है। सिर्फ ऐसा ही एक स्थान है, भगवान का धाम ही है, जहां पर कुंठा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई कलमश नहीं है। तो ये सारी बातें तो हमने सुन ली, जान भी ली, किंतु मुख्य बात ये बताओ कि हम लोग यहां आए ही क्यों? हमें इस प्रकार इस संसार में क्यों पड़ना पड़ा? भगवान हमारे पिता हैं बोलते हैं, तो उनको दया नहीं है क्या हमारे पे? हमें कष्ट में देखते हैं, इस संसार में फेंका ही क्यों? तो यहां पर हमारे गुरुवर्ग उत्तर देते हैं इसका
क्यों फेंका? उन्होंने नहीं फेंका। कोई भी माता पिता अपने पुत्र को फेंकना चाहते हैं क्या कुएं में? किसी भी गलत जगह पे भेजना चाहते हैं? नहीं। तो क्यों भेजा? क्यों जाना पड़ा? भगवान की अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। एक शक्ति है अंतरंगा शक्ति, दूसरी शक्ति है बहिरंगा, और तीसरी है तटस्था। इसको समझना जरूरी है। ये थोड़ा सा सिद्धांत है, थोड़ा सा फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी जाननी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, गुरुजी बतलाते हैं, फिलॉसफी इज लाइक द फाउंडेशन। वो फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर हम बहुत सुंदर रस का, लीलाओं का एक महल बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान की लीला सुनना चाहता है, हल्का हल्का कुछ कुछ सुनना चाहता है बस, तो वो क्या है, उसका फाउंडेशन तो स्ट्रांग होगा नहीं। वो महल जो बनेगा अभी, तो वो कभी भी गिर सकता है। तो इसलिए हमारे को सिद्धांत, उस फाउंडेशन में पक्का होना बहुत जरूरी है। तो अब जब जीव की उत्पत्ति होती है, वो होती है तटस्थ शक्ति से। तटस्थ मतलब मार्जिनल पोटेंसी। एक है भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जो कि अंतरंग शक्ति, जो कि क्या कंप्राइज करती है, भगवान का धाम, भगवान की सारी लीलाएं, उनके परिकर, सारे कुछ। और फिर बीच में क्या आ गई, मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिन का क्या मतलब होता है, मार्जिन खींच देना, तो मार्जिनल पोटेंसी। और इस तरफ आ गई बहिरंगा शक्ति, मतलब एक्सटर्नल पोटेंसी, भगवान की माया। बोलते ना ये माया जगत है भाई, तो ये जो माया है ये भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है। जीव की उत्पत्ति होती है इस बीच वाले एरिया से। जब जीव की उत्पत्ति होती है तब, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, फुल्ली इंडिपेंडेंट, और जीव भगवान का ही अंश है। क्या बोलते हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो वो जीव जो है भगवान का ही अंश है। तो क्योंकि वो अंश है, तो उसमें भगवान की सारी क्वालिटीज थोड़े थोड़े मात्रा में है, आंशिक मात्रा में है। जैसे बोले, एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। समुद्र है, समुद्र में से एक बूंद ले लो। अब वो जो समुद्र का कॉम्पोजिशन है और उस जो एक ड्रॉप ऑफ ओशन, वो बूंद का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होगा कि नहीं? उसमें भी पानी है, वो भी पानी है, इसमें भी खारापन है, उसमें भी खारापन है। लेकिन क्या ये बोला जा सकता है कि ये बूंद समुद्र है? नहीं। किसका फर्क आया? क्वांटिटी का, उसके साइज का, कितना बड़ा है वो। तो उसी प्रकार भगवान में सारे जो गुण हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो भगवत्ता हो, वो सारे के सारे जो गुण हैं वो कैसे हैं? इनफाइनाइट। जैसे समुद्र कितना बड़ा, ऐसे भगवान जिसको कोई नाप ही नहीं सकता। और हम जो उनमें से उत्पत्ति हुआ जीव, उनके अंदर भी वो क्वालिटीज हैं, लेकिन बहुत ही इनफाइनाइट सिमल, छोटा छोटा, बहुत छोटा। तो अब क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, तो जीव के अंदर भी कुछ मात्रा में स्वतंत्रता है। आज अगर हम अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या हम स्वतंत्र नहीं है किसी एक छोटी मात्रा में? कई तो एक पक्ष ये है कि हाँ, हमारे सामने जो भी आ रहा है वो हमारे कर्मों के ही फेर से आ रहा है। किसी का किस परिवार में जन्म हो रहा है, किसी के पास संपत्ति ज्यादा आई, किसी पे कम आए, किसी पे ये है, किसी पे नहीं है। कोई बहुत बीमार रहता है, कोई बहुत हेल्दी रहता है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये सारा कर्म के फेर से है। किंतु फिर भी एक कुछ छोटी स्वतंत्रता है जिससे मैं डिसीजंस ले रहा हूं। आज की डेट में, अभी के समय में मेरे पास स्वतंत्रता है कि भाई मैं जीवन जी सकता हूं, नहीं तो मैं किसी बिल्डिंग की छत से जाके कूद भी सकता हूं। अभी मैं हरिनाम भी कर सकता हूं, नहीं तो मैं मूवी भी देख सकता हूं। कुछ कुछ स्वतंत्रता तो है कि नहीं? तो वो स्वतंत्रता जो है वो भगवान की तरफ से दिया हुआ क्या है? एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन अब वो गिफ्ट जब मिल गया हमें, तो अब ये हमारे पे डिपेंड करता है उस गिफ्ट को हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। जब हमारी उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई, तब उस जीव को दोनों साइड दिखाई गई। क्योंकि जीव की उत्पत्ति कहां से हुई थी?
बीच में से। तो जब उसकी उत्पत्ति हुई तब उसको दोनों चीजें दिखाई दी, भगवान की जगत भी और ये माया का जगत भी। अब इसको दिखा कि भगवान के जगत में क्या है, सारे लोग भगवान के जो परिकर हैं भगवान को सेंटर में रख के जीवन जीते हैं, भगवान की सेवा के लिए जीवन जीते हैं और उस सेवा में ही उनको सुख मिलता है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं दुखी होकर मुंह लटका के सेवा करते हैं, नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या देखा जीव ने, कि यहां पर तो पहली तरफ देखा कि भगवान की सेवा हो रही है, तो अब एक जीव है जिसके मन में है कि अरे वाह भगवान की सेवा है, मैं भी सेवा करना चाहता हूं। तो वो जो उसकी स्वतंत्रता का उसने क्या किया यहां पे सदुपयोग, कि हाँ भगवान जो मेरे कर्ता है, मेरा जिनसे उत्पत्ति हुआ है, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो वो वहीं से कहां चले जाते हैं, भगवान के धाम में, भगवान के उस लोक में जहां पर वो उनकी नित्य सेवा करते हैं। किंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो कि क्या दूसरी तरफ भी सोचते हैं, क्या अरे यहां तो सब लोग भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, मेरी सेवा कैसे होगी, मैं भी अपनी सेवा चाहता हूं। यहां पे देखो भगवान के लिए अच्छे से खाना पीना भी ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो चाहिए ये सारा कुछ, मेरी सेवा कौन करेगा, मैं अपनी सेवा चाहता हूं, मैं भगवान की सेवा नहीं चाहता। तो अब उसकी उस जीव के लिए, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी है, भगवान स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें वो टांग नहीं अड़ाएंगे कि अगर जीव अगर चाहता है कि वो स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है तो भगवान उसके लिए वो अरेंजमेंट देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है माया का, ये भगवान का ही किया हुआ अरेंजमेंट है, भगवान की ही जो बहिरंगा एक्सटर्नल पोटेंसी है माया, उनके द्वारा ये जगत निर्मित है, जहां पर जीव क्या देखता है कि अरे यहां पर मैं भोग कर सकता हूं, यहां पे मैं अपना एंजॉयमेंट करूंगा। तो जब उसने वो देखा और वो डिजायर किया, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तब क्या हुआ, ये माया देवी ने उसको पकड़ लिया। तो माया देवी क्या है यहां पे, वो है एक जेलर की तरह, और हम लोग कौन है, कैदी की तरह। और ये जो जगत है शास्त्र बतलाता है ये जगत है जेल की तरह। तो क्या हुआ, इस जेल में हमें भेजा गया। जेल में किसी को क्यों भेजा जाता है, जब कोई कुछ गलती करता है, कोई नियम को भंग करता है, और उससे अब जेल क्यों बनाई जाती है, जेल बनाना भी एक प्रकार का क्या है, एक करुणा है। कैसे, ताकि ये व्यक्ति जिसने गलती करी है ये उसको सुधरे, उसको सुधार में लाए, अपनी गलती समझे और सुधार में लाए, और फिर वहां से जो निकलेगा तो एक अच्छा नागरिक बन के निकलेगा। तो इसीलिए हमें लगता है कई बार कि भगवान कितने निष्ठुर हैं, क्यों ऐसे करा हमारे साथ, क्यों हमें यहां तड़पने के लिए छोड़ दिया। किंतु ऐसा नहीं है, ये तड़पने की जगह है वो तो ठीक बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया हमारे करेक्शन के लिए। हमारी ही इच्छा थी खुद को भोग करने की अपने आप से, और इसीलिए क्या हुआ, हम ये दुख के आलय में पड़े। अब इसी जेल में क्या होता है, भगवान खुद ही करुणावश अपने परिकरों को भेजते हैं। तो उनका जो इस जेल में आना है वो कैदी जैसा है। जेल में डॉक्टर आता है कि नहीं, जो कैदी हैं उन बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर आता है, रेगुलर चेकअप भी करता है, वहां पे जेलर भी रहता है ना। एक बार क्या हुआ, गुरुजी बतलाते हैं, एक व्यक्ति उसका विवाह होना है, तो रिश्ते के लिए कोई लोग आए, तो उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उनका मैं जेल में रहता हूं, मैं जेल में काम करता हूं। तो वो तो डर गए, कह रहे आप जेल में काम करते हैं, हम आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। तो कहते क्यों, अरे आप जेल में रहते हैं। तो उन्होंने समझाया कि जेल में रहते हैं का क्या मतलब, मैं जेल के कैदियों की तरह थोड़ी रहता हूं, मैं जेल का जेलर हूं, वहां का मालिक हूं। तो फिर वो समझे। तो उसी प्रकार लगता ऐसा है कि कहां रह रहे हैं, जेल में रह रहे हैं, लेकिन जेल वाला जो जीवन है वो थोड़े ही जी रहे हैं।
उसी प्रकार जो हमारे जितने गुरुवर्ग हुए हैं, ये भी इस संसार में आए हैं कि नहीं आए हैं? लेकिन उनका इस संसार में आना, इन आचार्य का, इन महापुरुषों का इस संसार में आना और हमारा आना एक ही बात है? नहीं, एक बात तो नहीं है। इसमें तो बहुत फर्क है। क्यों? वो कैसे हैं? वो जेलर की तरह है और हम कैदी की तरह है। तो इसीलिए ये जो हमारा इस संसार में आके पढ़ना है, वो एक क्या है? करेक्शन पीरियड। और जो जीव समझ जाते हैं बहुत जल्दी कि हाँ, मेरे को करना क्या है इस जेल से निकलने के लिए। सब लोगों को पता है कि जो भी कैदी वहां पे अच्छा आचरण करता है, उसकी सजा कम हो जाती है कि नहीं? हो जाती है ना? तो उसी प्रकार यहां पर हमारे को जो वो भेजे गए हैं महापुरुष लोग, भगवान की करुणा के माध्यम से ही, करुणा की वजह से ही भगवान ने भेजे हैं कि जाओ आप और इन जीवों का उद्धार करो जो तड़प रहे हैं। तड़प किस ले रहे हैं? अपनी ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की वजह से। किस वजह से तड़प रहे हैं? मेरे को सबमिशन ना करने की वजह से, बीइंग नॉट सबमिसिव टू मी। अब यहां पर एक बहुत सुंदर विचार जो हमारे गुरुवर्ग बतलाते हैं। हम लोगों की कैसी स्थिति है? हम लोग अपने से ऊंचे, हर तरीके से, भगवान से हम ऊंचे हैं क्या? किसी भी सेंस में भगवान पूर्ण रूप से हमसे ऊंचे हैं, फिर भी हम क्या पूर्ण रूप से सबमिशन कर पाते हैं? पूर्ण रूप से शरणागत, पूर्ण रूप से उनकी शेल्टर ले पाते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र विचार अभी भी रहता है भक्ति जीवन में आने के बाद भी, कि मैं संभालूंगा, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो अब यहां पर एक विचार है। कितना समय है हमारे पास? 5-10 मिनट, ठीक। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सबमिशन। जैसे नेचर के लॉ हैं, गवर्नमेंट के लॉ हैं, हर चीज के लॉ हैं कि नहीं, ऐसे ही भगवान के भी लॉ हैं। उस लॉ में एक बहुत बड़ा लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सबमिशन, जहां पर मैं अपनी स्वतंत्रता को, अपने कर्तापन को, कर्तापन क्या होता है? आई एम द डूअर। मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? मेरे को करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं संभालूंगा तो कैसे संभलेंगी चीजें? कैसे चलेगा मेरा परिवार? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे गुरुवर्ग बतलाते हैं। श्री श्रीमद भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद के राइट हैंड बोले जाते थे। वो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के राइट हैंड श्री श्रीमद भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी। वो जब मठ से जुड़े थे तब उनके एक मित्र थे। वो जो मित्र थे, तो ये दोनों साथ में शिला प्रभुपाद जी की ना कथा कीर्तन सुनने के लिए आते थे। तो अब एक बार क्या हुआ, ये बार बार अपने मित्र को बोल रहे हैं कि चलो चलो शिला प्रभुपाद जी की कथा में चलते हैं, बहुत सुंदर कथा, बहुत अच्छा विचार, भगवान की भक्ति के बारे में बतलाते हैं सब कुछ। तो अब ये व्यक्ति क्या कहता है, अरे भाई तेरी तो शादी हो ही नहीं है, मेरी तो शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी हैं। अगर मैं तेरी तरह कथा सुनने चले जाऊंगा बार बार, तो फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी पत्नी को कौन संभालेगा, मेरे पूरे परिवार को कौन संभालेगा, कौन उनका पालन पोषण करेगा? तो वो ऐसे करके मना करके नहीं आते थे प्रोग्राम में। अब ऐसे करते करते वो छूट गए पूर्ण रूप से, और शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज मठ में आ गए पूर्ण रूप से, वहां ब्रह्मचारी की तरह, और अपना पूरा जीवन मठ में देने लग गए। अब इनका संपर्क भी टूट गया, नहीं मिल पाए, बात नहीं हुई। अब कई सालों बाद, करीब 20-25 साल बाद, 25 साल बाद एक नवजवान नवयुवक शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के आश्रम में आता है और उनको प्रणाम करता है। तो शिला महाराज जी कहते हैं, अरे कितने सुंदर, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो ये जो बालक है 25 साल का नवयुवक,
ये कहता है कि आपके एक मित्र हुआ करते थे, जिनके साथ आप रहते थे, जिनको आप मंदिर भी लेके आते थे कथा के लिए। तो मैं उनका पुत्र हूं। तो उनको याद आ गया, कह रहे अरे तुम उनके पुत्र हो, कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, मैं तो उनसे मिला भी नहीं, कैसे हैं अब वो? तो पुत्र क्या बोलता है, उनकी 25 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि 25 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, उसी समय तो हम साथ में थे। कहते हैं हाँ, आपका जैसे ही आप अपने रास्ते गए, वो अपना गृहस्थी में बिजी हो गए, तो उन्हीं कुछ दिनों में, उसी 1-8 महीने बाद ही उनकी ऐसे मृत्यु हो गई थी। फिर कहते अच्छा तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या जॉब है? कहता मैं बहुत बड़ा IAS ऑफिसर हूं। IAS ऑफिसर सबको पता है, इंडिया में तो कितनी बड़ी पोस्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज। कहता मैं IAS ऑफिसर बन गया हूं और मेरा खुद का एक बंगलो है, मेरी माता, मेरी बहन, सब लोग हमारे साथ में ही रहते हैं और बहुत अच्छे से जीते हैं। तो बस अब श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज ने कहा बहुत अच्छा, आशीर्वाद दिया और वो बच्चा चला गया। तो अब शिला महाराज जी, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके साथ में खड़े हुए थे। तब उन्होंने शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को बतलाया कि ये जो नवयुवक आपने देखा, इसके जो पिताजी थे वो मेरे मित्र थे, उनको मैं कथा के लिए, शिला प्रभुपाद जी की कथा के लिए लेके आना चाहता था बार बार, लेकिन क्या बोलते थे, अगर मैं आ गया, अगर मैं रोज रोज कथा सुनने आया या रोज रोज तुम्हारे इस भक्ति कार्य में 1-1, 2-2 घंटा देने लग गया, तो फिर मेरा जो सारा काम है, मेरे घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? भगवान आके संभालेंगे। तो इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। और उसी कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद देखो, कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ भी, किसी का भी जीवन रुक गया, ना उनके बच्चों का, ना पत्नी का, ना किसी परिवार के जन का, किसी का भी जीवन नहीं रुका, बल्कि क्या हुआ, बच्चा IAS ऑफिसर बन गया। कैसा जीवन, कितना अच्छा खुशहाल परिवार। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ सबमिशन क्या है। मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, ये समझना। ये एक स्टेटमेंट जो भगवत गीता की स्टेटमेंट है, करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये बहुत बड़ा जो हमारा अहंकार है ना कि मैं करता हूं, वो हमें क्या बना देता है, विमूढ़ आत्मा, बेवकूफ। और लास्ट में क्या करते हैं, वो बेवकूफी के जैसे ही हम जीवन जी लेते हैं, सबमिशन नहीं कर पाते, और क्या होता है, लास्ट में पछताते हैं। तो ये एक्ट ऑफ सबमिशन, लॉ ऑफ सबमिशन। अरे हम क्या सबमिशन करेंगे, भगवान खुद सबमिशन करके दिखा रहे हैं। हम जो इतने टाइनी हैं, हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं सबमिशन करेंगे, हम तो करता है, आई एम द डोर। और भगवान क्या है, भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं, लेकिन वो भी क्या करके दिखा रहे हैं, सबमिशन करके दिखा रहे हैं। और ये है उस लॉ ऑफ सबमिशन का टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सबमिशन टू द सबमिसिव। क्या बोला, लॉ ऑफ सबमिशन टू द सबमिसिव। क्या अर्थ हुआ इसका, कोई बतलाएगा, बताइए माता जी। लॉ ऑफ सबमिशन टू द सबमिसिव, सबमिशन करना उनके जो कि उन्हीं से ही सबमिसिव है। ये है सेवा कुंज की बात। वृंदावन में कौन कौन सेवा कुंज गया है, सेवा कुंज वृंदावन कौन कौन गए, वृंदावन बहुत सारे लोग गए, बांके बिहारी जी के मंदिर भी सब लोग गए होंगे, लेकिन सेवा कुंज नहीं गए। क्यों, क्योंकि हमारे को वो वृंदावन के दर्शन कराने वाले जो रियल साधुज हैं, उनका संग नहीं होता है। हम लोग जाते हैं वृंदावन और बांके बिहारी और बाहर प्रेम मंदिर है, इस्कॉन है, अच्छा है, लेकिन वृंदावन का हार्ट क्या है, सेवा कुंज इज द हार्ट ऑफ वृंदावन। सेवा कुंज
वृंदावन की सबसे ऊंची जगह है। वाई? क्योंकि वहां पर ये वाला लॉ फॉलो होता है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ सबमिशन टू द सबमिसिव। कौन है सबमिसिव? ये लॉ कृष्ण खुद फॉलो कर रहे हैं। कृष्ण के सबमिसिव कौन है? राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सबमिसिव कौन है? गोपियां, और उनमें से भी राधा रानी। अब कोई बोले कैसे बोल रहे हो ऐसे? कैसे, मापदंड क्या है? कैसे नाप रहे हो कि गोपियां ही है, राधा रानी है, यशोदा मैया कम है क्या? सखा कम है क्या? साख्य रस में है, वात्सल्य रस में है, क्यों ऐसे बोलते हो? तो इसका श्रील गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बड़ा सुंदर इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, देखो यशोदा मैया है, अपना सर्वस्व कृष्ण को दे रही है, किंतु नंद बाबा को छोड़ दिया क्या? छोड़ा नहीं। तो नंद बाबा को साथ भी संबंध है, पति का संबंध है, उनके साथ रहती हैं, उनको त्यागा क्या? नहीं। सखा है, सखा का कृष्ण के साथ कितना गाढ़ा संबंध है, लेकिन क्या सखाओं ने अपने माता को, घर को त्याग दिया? संबंध को त्यागा अपने मम्मी पापा से या अपने और भाई बहन या किसी और गोपी गोप से? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ये गोपियां ही ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया है? अपना सारा कुछ त्याग दिया। कौन माता, कौन पिता, कौन ससुर, कौन सास, कौन पति, कौन बच्चे, सब त्याग दिया। सिर्फ गोपियों ने, किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। अब यहां पर जो बात है उसमें भी, उन गोपियों में भी सर्वोत्तम त्याग किसका? सर्वोत्तम सर्वस्व जिन्होंने अपना न्योछावर कर दिया, वो है श्रीमती राधा रानी। तो यहां पर वो सबसे बड़ा सबमिसिव किसकी हुई? सबसे बड़ी सबमिसिव अमंग ऑल दोज हु हैव डन द सबमिशन टू कृष्णा कौन है? श्रीमती राधा रानी। अब यहां ये सेवा कुंज ऐसा स्थान है जहां पे उल्टी रीति बह रही है। बताते हैं ना, वृंदावन में 2 नदियां हैं। कौन सी 2 नदियां हैं बताइए? एक तो बताइए। यमुना तो है ही है। दूसरी नदी कौन सी है? प्रेम की नदी। और प्रेम नदी उलट बहती जाए। जो प्रेम की नदी है, इसका एक स्पेशलिटी है, ये उल्टी बहती है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बहेगी। तो ये सेवा कुंज ऐसा स्थान है जहां पे जो दृश्य दिख रहा है वो पूर्ण रूप से उल्टा है। दृश्य क्या होना चाहिए कि जो सेवक है, जो जिसने सबमिशन किया है, वो जिसके लिए सबमिशन किया है उसकी सेवा करेगा। तो राधा रानी ने सबसे बड़ा सबमिशन किया है। राधा रानी किसकी सेवा करेंगी? कृष्ण की। लेकिन सेवा कुंज में क्या है? कृष्ण राधा रानी के चरण पलट रहे हैं। कृष्ण जब सेवा कुंज में घुसते हैं और जब वो देखते हैं कि राधा रानी ने अपने चरण पसार रखे हैं, चरणों को छुपा नहीं रखा, पसार रखे हैं, तो कृष्ण क्या सोचते हैं? आज तो बहुत बड़ी कृपा हो गई है, आज मेरा सबसे फॉर्चुनेट डे है। क्यों? क्योंकि राधा रानी मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए तत्पर है। ऐसा कृष्ण वो परब्रह्म सोचते हैं। तो वो जो जिनके लिए सब लोग सेवा कर रहे हैं, वो किनकी सेवा कर रहे हैं? राधा रानी। और ये जो दृश्य है सेवा कुंज का, ये ही वृंदावन की स्पेशलिटी है। ये जो भाव है, ये जो लॉ ऑफ सबमिशन टू द सबमिसिव है, ये वृंदावन की स्पेशलिटी है। और कहीं द्वारका, मथुरा, वैकुंठ, कहीं पर भी ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा। कृष्ण नहीं सेवा करेंगे, लेकिन यहां कृष्ण कैसे पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं। तो कहां से शुरू किया था हमने? हम लोग इस जगत में क्यों आए? क्या कारण है? हमारा इंडिपेंडेंट नेचर को हमने मिसयूज किया। जो इंडिपेंडेंस का जो गिफ्ट दिया है भगवान ने हमें, उस गिफ्ट का हमने बहुत बड़ा मिसयूज किया है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, है ना? तो आज हम उस मिसयूज, उस दुरुपयोग को कम से कम नोटिस तो कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं क्या? थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं।
अभी भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, उसके भी बहुत विचार है। अभी तो समय नहीं है, इसलिए सारी चीजें नहीं अभी डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन अंततः इतनी सी बात को बस अपने मन में लेके चले कि मुझे अपनी स्वतंत्रता का ठीक उपयोग करना है। और ठीक उपयोग कैसे होगा? इस बदमाश बुद्धि से। ये तो वैसे ही इंडिपेंडेंट है, इसी बुद्धि की वजह से ही तो मैं फंसा हूं, इसी बुद्धि की वजह से तो मैंने दुरुपयोग किया। अब उसी का सहारा लेके सदुपयोग भी करूंगा? नहीं, मुझे नहीं आता है करना, देख लिया करके मैंने। तो क्या करूंगा अब श्री गुरु के चरणों का आश्रय करूंगा। वो जो मेरे को मार्ग बतलाएंगे उसको एक छोटे बालक की तरह मानते हुए आगे अपने योग्यता के अनुसार धीरे धीरे कुछ कुछ फॉलो करते हुए चलूंगा। उन्होंने कहा है 16 माला करनी, ठीक है, मैं चेष्टा करूंगा पूर्ण रूप से। उन्होंने कहा है एकादशी का व्रत पालन करना है, मैं उसको पालन करूंगा। उन्होंने कहा है कुछ ग्रंथ पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम, जो भी आपको समझ आता है, कुछ भी थोड़ा सा किंचित मात्र 1 पेज 1 दिन में। और सबसे मूल चीज उन्होंने क्या बोली है? क्या बोली है सबसे मूल चीज? साधु संग। साधु संग जो है हमारी भक्ति की रीढ़ है। तो वो साधु संग को लेते हुए, उस साधु संग को अप्रिशिएट करते हुए, उसको करते हुए, साधु संग करते हुए मैं अपना जीवन यापन करूंगा। और उससे ही क्या होगा? वो ये सारी चीजें जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है करने के लिए, वो बड़ी सिंपल अनायास रूप में हो जाएगी। ये सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं? जब भक्तों का संग होता है तो वो ही सारी चीजें जो पहले नहीं हो पाती थी वो एकदम से होने लगती हैं अपने आप ही, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अकेले रहो, क्या होगा? सब छूटने लगेगा धीरे धीरे। एकादशी छूटने लगेगी, हरिनाम छूटने लगेगा, माला छूटने लगेगी, सब कुछ छूटने लगेगा। तो इसीलिए यही टेक अवे है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना है। कैसे? कुछ बड़ी चीज नहीं है कि बहुत कुछ हाथ से छूट रहा है, नहीं, उसको इतना बड़ा लेना ही नहीं है। बस क्या करना है? सत्संग करना है, साधुओं का संग करना है, वैष्णवों का संग करना है। बस ये ही आज का कहिए तो जीवन का ही पूरे मतलब ये बॉटम लाइन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna. So in a bit we're going to show a short video clip. So those who aren't aware, but my Gurudev, Om Vishnupad Astotsata Shishimad Srila Bhaktivedanta Saranti Maharaj, he is building a new center in Faridabad. Currently we are staying in sector 16, but we have a very, very nice new building. It is being constructed at the moment in sector 21C. Right? 21C in a very nice area. It's going to be a very, very beautiful mat. So 2008 में नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी फरीदाबाद में आए थे पहली बार। तो उन्होंने वहां पर ये इच्छा प्रकट करी थी कि मैं एक गौड़िया मठ चाहता हूं फरीदाबाद। तो हमारे गुरु महाराज जी श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी दोनों ने अथाह प्रयास किया। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। श्री राधा माधव जी को स्थापित किया वहां पर, एक छोटे से किराए के घर से शुरू किया सेंटर, और दिन रात वहां पे चेष्टाएं करी, लोगों को इकट्ठा किया, प्रोग्राम्स किए, खून पसीना बहाया। और ऐसे सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, हम लोग क्या होता है 2 साल 3 साल में क्या होता है, प्रयास करते करते थक जाते हैं कि बस अब नहीं होगा। लेकिन ऐसे उन्होंने 14-16 साल तक उन्होंने प्रयास किया निरंतर। और फाइनली फिर श्रीला गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की वजह से, उनकी कृपा से, और श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपना संग प्रदान किया। फरीदाबाद मठ में ही श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने अपनी अप्रकट लीला करी, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज पूरा लैंड भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और
गुरु महाराज जी और प्रभु जी दोनों अथाह प्रयास करके इन 14-16 वर्षों का प्रयास के बाद ये फल हमारा निकल रहा है कि एक सुंदर भव्य मंदिर श्री राधा माधव जी के लिए, उनके लिए एक सुंदर घर बनाने की चेष्टा की जा रही। तो ये उसका वीडियो है, आप सब लोग प्लीज देखिए। एवरीवन कैन सी, पीछे से देख सकते हैं माता जी, देख पा रहे हैं? ठीक। अच्छा, ये निकल भी जाता है। Yeah, there's no sound. You can explain about it. ये फ्रंट है मंदिर का। ये गुरु महाराज जी हैं, श्रीपाद भक्तिवेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज। ये टेंपल रूम है। यहाँ पर ठाकुर जी विराजित होंगे, ऑल्टर है ये। This is the elevator. वो माधवपुर लोगों को आप इसमें नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर, ऐसे 2 फ्लोर बन रहे हैं, टोटल 11 रूम हैं। हाँ, जो बगल की लैंड है वो पूरी खाली है, तो वहां पे काफी ट्रीज है। जनकपुरी के मट्टी कराई तो हाँ, उससे लेकिन छोटा है, वो काफी बड़ा है और उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन वैसा ही है। 2 फ्लोर है ऊपर और नीचे टेम्पल है। फ्रंट में इसके नहीं, वो लैंड गवर्नमेंट अलॉट करती है, तो वो किसी और को अलॉट करेगी। अभी वो उसमें कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। दिस इज प्रसादम हॉल, बेसमेंट हॉल। हम लोग को एक घर बनाना पड़ता है तो पूरी जिंदगी लग जाती है ना। तो इतने बड़े बड़े मठ, ये भगवान की कृपा ही है कि बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सारा गुरुवर्गों की कृपा से ही ये हो रहा है। And they don't have any business, they don't have any job, तो कितना बढ़िया सब कुछ हो रहा है। जो इनको गवर्नमेंट के चक्कर खाने पड़ते हैं और जो हाँ, करना पड़ता है। गुरु महाराज जी बतलाते हैं किस प्रकार से उन्होंने इतने चक्कर लगाए हैं गवर्नमेंट, मतलब पूरा जैसे रगड़ रगड़ के जो घिस जाती है ना, चप्पल घिसने वाली बात। ये लैंड लेने तो अब वही सोचें कि सिर्फ ये किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? उनको कुछ मिल रहा है क्या इससे? वो अपना घर भर, वो गुरु महाराज जी हमारे दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। करोड़ों रुपए को त्याग के, एकदम से छोड़ के, वो कैसा जीवन मथुरा में शिला गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अंडर उन्होंने जिया है, एकदम दीनहीन वाला। फिर उसके बाद क्यों ऐसे इतना चेष्टा कर रहे हैं, क्यों फिर उसी चीज में जा रहे हैं? कोई बाहरी रूप से तो ऐसा ही लगेगा कि क्यों इतना फिर विशाल मंदिर ये सब क्यों बना, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि शिला गुरुदेव की आज्ञा, उनकी इच्छा को ही अपना जीवन बना लिया। उनकी इच्छा को ही जीवन बनाना ही क्या है? लॉ ऑफ सबमिशन, जो भी हमने सुना। तो इसीलिए बस हमने ये आप लोगों को एक बार दिखाना चाहा कि प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी मीरा दीदी कुछ आप बोलिए। So, यही जैसे आप प्रभु जी बता रहे हैं कि so इससे कि कितना कि भगवान की असीम कृपा है, गुरुवर्गों की असीम कृपा है कि उनकी
आशीर्वाद से ये इतने बड़े बड़े मठ मंदिर बन रहे हैं, वो हम लोगों के लिए ही बन रहे हैं कि अगर मठ मंदिर नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। सो इफ अगर कहीं पे भी देयर इज नो टेम्पल नो मठ, सो वेयर वी गोना गो ना। सो इसीलिए वो हमारे लिए बना रहे हैं, सब लोगों के लिए। सो इसलिए कि हम लोग वहां जा सके, वहां अपना कुछ भगवान का आशीर्वाद, कुछ भक्ति, कुछ देख सके, कुछ समझ सके। सो हमारे गुरुवर्गों का बहुत बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो लोग मुक्त जीव हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं। तो वो मुक्त जीव बद्ध जीवों को इस जो भव है इससे निकालने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं सब लोग। ये जो हम बोलते हैं ना मठ, तो कोई बताएगा मठ और मंदिर में क्या फर्क होता है? मंदिर ही क्यों नहीं बोला? शिला प्रभुपाद जी ने इसका नाम मठ क्यों दिया? सीधा टेम्पल बोल देते, सिंपल। क्यों मठ? मठ का अर्थ है मठते वसती, ऐसा स्थान जहां पे वास किया जाए और फिर वहां पर मूल रूप से क्या हो? भगवान की पढ़ाई हो। मंदिर में जाते हैं, जो वहां पे जो पुजारी होता है वो हमें बताते हैं कि कैसे प्रणाम करना है, भगवान को कैसे देखना है, भगवान का तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, क्यों भक्ति करनी है, क्या करना है। मंदिर में तो कोई भी पुजारी कुछ नहीं बताते। क्या वो क्या देते थे? बूंदी का प्रसाद देंगे और थोड़ा सा कुछ प्रसाद देंगे, बताशा दे देंगे और बस हो गया। वहां कोई एजुकेशन है? कोई एजुकेशन नहीं है। लेकिन मठ को हमारे गुरुवर्ग क्या बतलाते हैं? मठ इज फर्स्ट एन इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जहां पे भगवान की शिक्षा दी जाती है, और उस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत उस इंस्टीट्यूट के अंडर टेम्पल है, उसमें ठाकुर जी की सेवा होती है। जो आप पढ़ाई करते हो, जो ठाकुर जी के बारे में जानते हो, उसको अप्लाई करते हो ठाकुर जी की सेवा में। तो ये मठ जो है एक बहुत बड़ी देन होती है कंपेयर टू एक टेम्पल। जैसे बोलते हैं ना, क्यों आप टेम्पल बनाए जा रहे हैं? जनरल टेम्पल्स इज डिफरेंट फ्रॉम मठ वेरी मच। मठ में व्यक्ति निकलते हैं, मठ में भक्त लोग निकलते हैं, जो कि सिद्धांत के साथ, सारी शिक्षाओं के साथ, उन सारे ग्रंथों की नॉलेज को लेकर निकलते हैं, और फिर वो एक एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को वो नॉलेज दे पाता है। तो इसीलिए मठ एक ऐसा स्थान है जहां पर एक सुविधा दी गई है। किस चीज की? डोंट वरी, स्टडी हरी। तो उस उद्देश्य के साथ हमारे गुरुवर्गों का ये बहुत एक नोबल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कोई बाहरी रूप से हमारा कुछ जागतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीजें तो छोड़ के आए हैं, फिर क्यों इस चीज के लिए वो करेंगे? तो बस इसी को अप्रिशिएट करते हुए, उनके इस बड़े मिशन में हम, जैसे राम जी की जो पूरी आर्मी थी, उसमें लंका तक जाना था तो ब्रिज बना रहे थे। तो जब ब्रिज बना रहे थे तो राम जी ने क्या नोटिस किया? बड़े बड़े लोगों को तो देख ही रहे हैं, हनुमान जी बड़े बड़े चट्टान लेके आ रहे हैं, पर्वत लेके आ रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन राम जी की नजर कहां जा रही है? कोने में गिलहरी के ऊपर, जो क्या कर रही है? वो लौट रही है सैंड में, और फिर वहां जाती है और अपने बॉडी को शेक करती है ताकि वो सैंड पार्टिकल्स जो थोड़े से हैं वो उस ब्रिज में गिर जाएं, और वो उसका कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन कोई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है अगर देखा जाए तो? नहीं लग रहा। उससे क्या होगा? लेकिन राम जी के लिए बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। उसको अपने हाथ में उठा दिया गिलहरी को, और प्रेम से उसको क्या कर रहे हैं? सहला रहे हैं। और वो ही 3 उंगली जिनसे सहलाया, वो 3 उंगली क्या हो गई? छप गई। वो कृपा का एक साइन है, साइन ऑफ मर्सी है वो, जो कि कहाँ की? सिर्फ इंडिया श्रीलंका की गिलहरी में मिलेगा वो, पूरे वर्ल्ड में और दूसरी गिलहरियों में नहीं मिलता है वो। जो 3 स्ट्राइप्स हैं, वो व्हाइट स्ट्राइप्स, तो वो राम जी की 3 उंगलियां। किसकी उंगलियां? प्रेम की उंगलियां, ग्रैटिट्यूड की उंगलियां, कि भगवान के उस मिशन में, उस बड़े मिशन में छोटा सा एक योगदान करने पर भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे गुरुवर्गों का बहुत बड़ा मिशन है। इसके क्या क्या इनके मूड्स हैं हम तो समझ भी नहीं सकते, लेकिन उन्हीं में किंचित मात्र एक
गिलहरी की तरह ही हमने थोड़ा सा भी कुछ योगदान अगर हम कर दें तो हमारे लिए क्या है, वो पता नहीं क्या दे देंगे हमें। तो बस हमें तो वही संपत्ति चाहिए, उसी लिए ही हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एक गिलहरी ही बन जाए उनकी बड़ी आर्मी में, ये भी बहुत बड़ी एक बात है। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं, बहुत लेट भी हो गया है, सब भक्तों को दूर दूर जाना है अपने घर पे। और बुक्स का हम लोग कुछ ग्रंथ लेके आए हैं जो कि श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी द्वारा लिखित हैं, और श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जिनकी हमने बात करी ना अभी, जिनका फ्रेंड के बारे में हमने सुना था, उनके कुछ लेटर्स हैं। वो लेटर्स अपने डिवोटीज, अपने भक्तों को भेजते थे, तो वो लेटर्स में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं। तो उन लेटर्स को कंपाइल करके एक छोटा सा ग्रंथ, एक छोटी सी बुक बनाई गई है। तो ऐसे हमारे पास 2-3 ग्रंथ हैं जो हम लेके आए हैं। प्लीज जो भी इंटरेस्टेड हो वो उनको लेना है, तो हम यहीं पे बैठे होंगे, आप हमसे ले लीजिएगा। बहुत मिनिमल कॉस्ट में है, $6, $7, $8 ऐसे ऐसे, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। नंदिनी दीदी कुछ कीर्तन करना है या फिर कंक्लूड करें? टाइम प्रभु जी क्विकली कीर्तन कर लेते तो मैं ऐसे में ऑफर कर दूं। हाँ ठीक है, आप ऑफरिंग कर दीजिए, हम तब तक कीर्तन कर लेते हैं छोटा सा। अंत में हमने राधा रानी की महिमा सुनी, तो एक राधा रानी का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। ओ राधा श्यामा राधा, सभी लोग बोलिए श्यामा परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, श्यामा नाम परम सुखदाई। लहर लहर श्री श्यामा की, 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 मन में समाई,
को राधा जन्म बिताओ रट रट जन्म बिताओ रज गोपीन को शीश नवाओ रज गोपीन को शीश नवाओ रट रट राधा जन्म बिताओ रट रट राधा जन्म बिताओ रज गोपीन को शीश नवाओ रज गोपीन को शीश नवाओ महिमा कहीं नहीं जाए महिमा कहीं नहीं जाए राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई श्यामा नाम परम सुखदाई श्यामा नाम परम सुखदाई ब्रज त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं ब्रज त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं रसिक सतन के दर्शन पाऊं रसिक सतन के दर्शन पाओ त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं ब्रज त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं रसिक सतन के दर्शन पाऊं रसिक सनातन के दर्शन पाऊं जग से प्रीति हटाई जग से प्रीति हटाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम
राधेशा। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा रमण बिहारी, श्री श्री राधा माधव जो की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शीला भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। सपार्षद शीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ शब्द गोस्वामी प्रभु की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री नवदीप माथुर धाम की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जो की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादशनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। श्री नरसिंह देव की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।